Hello students, our next topic is interlinking production across countries. It means interlinking के according क्या आएगा? Suppose these are two countries. यहाँ पे जो production है वो अपने production को क्या करेगा, जो materials हैं spread करेगा and जिस चीज की उसको demand है उसको क्या करेगा, receive करेगा. कहाँ से? From different parts of the world. That's why it is called interlinking relationship of the countries. Investment. It is the purchase of goods that are not consumed today but are used in the future to create wealth. इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम फ्यूचर में इन्वेस्ट उसको प्रेजेंट में उसको इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज एट द टाइम वी आर नॉट इंटरेस्टेड या वी आर नॉट इन नीड टू यूज ऑल दिस थिंग्स एंड इन फ्यूचर वी वांट टू यूज ऑल दिस थिंग्स दैट्स व्हाई वी इन्वेस्ट. ठीक है, ओके. नेक्स्ट आता है कि फ्यूचर में वेल्थ कमाने के लिए सपोज करो कि इन एनी प्रोडक्शन वर्क, इन एनी इंडस्ट्री, इन एनी सेक्टर वी deposit our money या we invest our money. What is the purpose? Our purpose is that in future we can adopt या we can increase, we can improve our money या more profit, all these things. The money that is spent to buy assets like land, buildings and other equipment is called investment. This is the definition of investment. The money that is spent to buy assets like land, यानी कि कोई भी चीज है just like land building, यानी कि जमीन वगैरह खरीदते हैं या उस पे बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, या कोई भी other equipment, it can be a factory, it can be raw material, it can be produced goods, it can be transportation vehicle, anything is called investment. किसी भी चीज को हम खरीदने के लिए उसको खरीदते हैं, पैसा लगाते हैं. What is the main purpose? Main purpose is that in future we can get money, more money या profit. Next है foreign investment. Foreign investment के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? In different, यानी कि जो वर्ल्ड लेवल पे जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं in other countries. It is when a company or individual from one nation invest in assets or ownership stakes of a company based in other nation. It means जो दूसरे देश में कंपनी सेटअप है वहां पे अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट है MNCs सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ दिस कंट्रीज. MNCs के अकॉर्डिंग हमने क्या बताया था कि ये दूसरी कंट्रीज में, अपनी कंट्रीज के साथ साथ दूसरी कंट्रीज में भी अपने ऑफिसेस एंड जो उसकी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज है उनको सेटअप करता है, लेकिन वो उनका प्रोडक्शन का जो वर्क है वो ज्वाइंटली करता है किसके साथ? उस कंट्रीज की लोकल कंपनीज के साथ मिलकर. सपोज करो कि चाइना सेटअप करता है कहां पर? इंडिया में. इंडिया में अपनी जो इंडस्ट्री है वो सेटअप करता है, तो यहाँ पे सेटअप करेगा तो इट मींस नॉट कि वो अपने बेस पे ही प्रोडक्शन करेगा. नो, ही विल टेक हेल्प इंडियाज लोकल कंपनी, जो इंडिया की लोकल कंपनीज है उनकी हेल्प से ही उसको प्रोडक्शन को आगे कंटिन्यू करता है. The benefit of the local companies of such joint production is twofold. यानी कि जो लोकल कंपनीज है उनका जो प्रोडक्शन के बेसिस पे जो इंप्रूवमेंट होता है, प्रॉफिट होता है, वो डबल फोल्ड होता है. व्हाई? व्हाट इज द रीजन? Reason is that MNCs can provide money for additional investment like buying new machines for faster production. तो यहाँ पे उनका जो डबल फोल्डेड जो इंटरेस्ट बोला गया है या प्रॉफिट बोला गया है वो किस तरीके से होगा कि जो MNCs जो कंपनीज हैं जो उसके लिए क्या करेगा कि उनको तो मेन पर्पस ही ये है कि मोर एंड मोर बेनिफिट दे कैन अर्न. And for this purpose, they provide machines, advanced machine to the local companies so that their production will be faster. ताकि उनका जो प्रोडक्शन है वो faster हो पाए, तेजी से हो पाए. नेक्स्ट क्या है? Using the local companies for supplies. और उनको प्रोडक्शन को सप्लाई करने के लिए जो उन्होंने मटेरियल प्रिपेयर किया है उसको सप्लाई करने के लिए they require the local companies so that the local companies
both with closely competing with the local companies and buying them. As a result, the production is this wide dispersed, location is getting interlinked. That's why it is told that the foreign companies and the local companies are interlinked. Both are depend on each other. Next है MLCS control production of local companies. जो MLCS है ये local companies के production को क्या करता है, कंट्रोल करता है. In which way large MLCS in developed countries place orders for production with small producers. यानी कि वो प्रोडक्शन को क्या करता है, कंट्रीज प्लेस ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन, ऑर्डर प्लेस करते हैं किस पर्पस के लिए, प्रोडक्शन के, ताकि उनका जो प्रोडक्शन है वो इंप्रूव हो पाए विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स, यानी कि जो स्मॉल लोकल कंपनीज के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ कनेक्ट करके. नेक्स्ट है गारमेंट्स, फुटवेयर, स्पोर्ट्स आइटम्स आर एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स अराउंड द वर्ल्ड. These are the examples जो कपड़े वगैरह मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, फुटवेयर जो हमारे शूज वगैरह हैं, all these and स्पोर्ट्स आइटम्स, इनका जो प्रोडक्शन है वो भी क्या होगा, लार्ज नंबर पे किया जाता है स्मॉल प्रोड्यूसर्स के अकॉर्डिंग, यानी कि काफी छोटे स्केल में, ताकि जो बड़ी कंपनीज का लेवल लगा के उसको मार्केट में सेल किया जा सके. The products are supplied to MLCs with which then sell these products under their own brand names to the customers. Same things. इसमें क्या आएगा कि जो लोकल कंपनीज है उस चीज को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा कि जो बड़ी MNCs कंपनीज है उस पे अपना लेबल पेस्ट किया एंड मार्केट में इसको क्या करेंगे, सेल करते हैं, जिसकी वजह से ब्रांड क्या होगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड हो रहा है ना, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड हो रहा है, जिसकी वजह से कंपनी किसको प्रॉफिट होगा, MNCs को प्रॉफिट होगा, MNCs को होगा, प्लस जो हमारी लोकल कंपनीज है उनका जो मटेरियल है, प्रोडक्शन है, वो भी क्या है, तेजी से सप्लाई हो रहा है, तो प्रोडक्ट जो बेनिफिट है वो लोकल कंपनीज को भी हो रहा है. नेक्स्ट है these longer MNCs have tremendous power to determine prices, quality, deliver and labor conditions for these distant प्रोड्यूसर्स. इनके लिए जो डिलीवरी वगैरह है, उनको जो सप्लाई करना है या उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग कंडीशंस है वो क्या होगी, उनके बेनिफिट में होगी. ओके, अब यहाँ पे मेन MNCs के अकॉर्डिंग आपको क्या बताया गया है कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड दे स्प्रेड देयर ऑफिसेस एंड इंडस्ट्रीज एंड लोकल कंपनीज के अकॉर्डिंग उनका जो बेनिफिट है वो किस तरीके से आएगा कि लोकल कंपनीज को तो बेनिफिट होता है प्लस MNCs को भी प्रॉफिट होता है. ओके, नेक्स्ट थिंग्स क्या है कि व्हाई MNCs हेल्प द लोकल कंपनीज को हेल्प क्यों करते हैं, क्योंकि जो उनका जो प्रोडक्शन है वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं. नेक्स्ट क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए लोकल कंपनीज को वो फास्टर मशीन्स वगैरह या जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो पाए. Okay students, this topic is completed and our next topic we are doing in our next class. Thank you.